my dear students. Today we are going to study chapter 9, A Brave Man of English. So let's start. Suresh was a lazy man, but he was very wise. One morning, some flies sat on his food. This made him very angry. He threw a piece of cloth. Oh, he was pleased. I killed 7 at a blow, he said to his friends. How could they know he had killed only flies? The king called Suresh and asked, I hear you have killed 7 at a blow. Is it true? Suresh bowed his head. It is true, O king. We need your help, said the king. A giant has come to our city. He is very wicked. He is killing and eating people. Only you can kill him. I will kill him, O king, said Suresh. He put a bird in one pocket. He put some cheese in the other pocket. Then he set off to find the giant. Ah, said the giant, you do not scare me. I picked up a small stone and squeezed it hard. Water dripped through his fingers. That's easy, said Suresh, taking the cheese out of his pocket. He squeezed it. Water flowed into the grass. The giant stood up. Ah, but can you do this? He threw a stone high in the air. It took 10 minutes to fall to the ground. Suresh took the bird out of his pocket. He threw it high into the sky. The giant waited for it to fall, but the bird had flown away. You are strong, the wicked giant said. He took Suresh to meet a bad genie. The giant and the genie were friends. They talked for a while. Then they fell asleep under a big tree. Suresh filled his pocket with stones. He climbed up a tree. He threw a stone at the genie. Hey, said the genie to the giant, don't hit me. I didn't hit you, said the giant. When they were asleep again, Suresh threw a stone at the giant. How dare you hit me so hard, said the giant to the genie. I was sleeping, I didn't hit you, yelled the bad genie. Oh, yes, you didn't, screamed the giant. They began to fight. Soon they both dropped down dead. And that was the end of the wicked giant and the bad genie. The king was happy. He made Suresh a soldier
in his army and give him many gifts. बच्चों, अब मैं आपको इसकी हिंदी बताती हूँ। सुरेश एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन वह चतुर भी था। एक दिन कुछ मक्खियाँ खाने पर बैठ गईं, तो उसने मक्खियों पर कपड़ा फेंका, इससे 7 मक्खियाँ मर गईं। उसने अपने दोस्तों को कहा कि उसने एक बार में 7 को मारा, पर उसके दोस्तों को कैसे पता चला कि उसने मक्खियों को मारा। एक दिन राजा ने सुरेश को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुमने एक बार में 7 को मारा, क्या यह सच है? सुरेश ने बोला, हाँ, यह बात सही है। फिर राजा ने कहा, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। एक जाइंट शहर में आ गया है, तुम उसे मार रहे। बच्चों, अब मैं आपको इसकी हिंदी बताती हूँ। सुरेश एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन वह चतुर भी था। एक दिन कुछ मक्खियाँ खाने पर बैठ गईं, तो उसने मक्खियों पर कपड़ा फेंका, इससे 7 मक्खियाँ मर गईं। उसने अपने दोस्तों को कहा कि उसने एक बार में 7 को मारा, पर उसके दोस्तों को कैसे पता चला कि उसने मक्खियों को मारा। एक दिन राजा ने सुरेश को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुमने एक बार में 7 को मारा, क्या यह सच है? सुरेश ने बोला, हाँ, यह बात सही है। फिर राजा ने कहा, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। एक जाइंट शहर में आ गया है, बहुत क्रूर है, वह लोगों को मार रहा है और खा रहा है। तो सुरेश ने कहा, मैं उसे मार दूंगा। उसने अपने एक पॉकेट में एक चिड़िया रखी और दूसरे में चीज और निकल पड़ा उस जाइंट को ढूंढने। जाइंट ने कहा, तुमने मुझे नहीं डराया, मैं पत्थर से पानी निकाल सकता हूँ, क्या तुम? उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर को निचोड़ा और उस पत्थर से पानी की बूंदें टपकने लगी। फिर सुरेश अपनी पॉकेट से चीज निकाला, फिर उसे निचोड़ दिया, जिसे पानी निकलकर घास पे बहने लगा। फिर जाइंट कहता है, ओह, क्या तुम इसे कर सकते हो जिसे मैं करने वाला? फिर उसने पत्थर को लेकर हवा में उछाल दिया, जो फिर 10 मिनट बाद जमीन पर गिरा। फिर सुरेश ने अपने पॉकेट से बर्ड निकाला, फिर उसे आकाश में फेंक दिया। फिर जाइंट इंतजार करने लगा कि कब बर्ड गिरेगी, लेकिन बर्ड दूर चली गई। फिर उस जाइंट ने कहा, तुम बहुत ताकतवर हो। तो फिर सुरेश को वह बैड जीनी के पास ले गया। बैड जीनी और जाइंट दोनों दोस्त थे। फिर उन दोनों में बातें हुई और फिर वो दोनों बड़े पेड़ के नीचे सो गए। फिर सुरेश ने अपने पॉकेट में पत्थर को भरा और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। फिर उसने एक पत्थर जीनी के ऊपर फेंका। फिर जीनी ने जाइंट से कहा, हे, मुझे मत मारो। फिर जाइंट ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं मारा। फिर दोनों सो गया। तब सुरेश ने एक पत्थर जाइंट के तरफ फेंका। फिर जाइंट ने जीनी से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना जोर से मुझे मारने की? फिर बैड जीनी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें नहीं मारा। फिर जाइंट, वो, हाँ, तुम्ही ने मुझे मारा है। फिर दोनों में लड़ाई हो गई और दोनों मर गए। और राजा ने सुरेश के कार्य से बहुत खुश होकर उसे अपनी सेना में सिपाही बना लिया और उसे कई सारे उपहार भी दिए। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि से किसी भी मुसीबत को सुलझाया जा सकता है। This is how your chapter is finished.